مطلب میں ناراضگی کی وجہ سے نہیں ریزائن کر رہا ہوں. میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے 53 آرگنائزیشنز کو ایویلویٹ کرنا اور ایک کو بند کرنا ہے, اس کا مطلب نیت نہیں ہے آپ کی اخراجات کم کرنے کی. اور اخراجات کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے, اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے, میں بھی قرضہ نہیں دے رہا. ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں, کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا. غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے. ہم ایف ڈی آئی کے تلاش میں تھے, ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے. اس صورت میں کچھ ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے اس کمیٹی نے معاملہ چلایا ہے, اس سے اخراجات کم نہیں ہوں گے اور معیشت کی حالت سے کی. میری ناراضگی نہیں ہے, میرا دکھ ہے اور غصہ ہے کہ معیشت بالکل کلیپس کے صورت میں ہے, اور اسلام آباد آپ جائیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی کرائسس ہے ہی نہیں. اس کی کیا جی دیکھیے, دفاع پہ تو ہم نمبرز نہیں بتا سکتے چونکہ صرف 1 لائن بجٹ ہوتا ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر جو ہے ڈیفنس کا, اس میں کمی کی جائے. نان کامبیٹ سے مطلب یہ کہ وہ اخراجات جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جنگ سے. جنگ پہ ہم بات نہیں کرتے چونکہ ایک تو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور سیکیورٹی ایشوز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اس پہ چلتے پھرتے بات نہیں کرنی چاہیے, آج بھی نہیں کروں گا. لیکن جو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر ہے, اور ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, بہت سارے میں کرتا رہا ہوں, کہ اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو کم کریں, ختم کریں. دیکھیں, چونکہ ڈیفنس کے جو اتھارٹیز ہیں وہی طے کر سکتے ہیں کہ ان کا ٹوٹل جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اس میں کامبیٹ کتنا ہے, نان کامبیٹ کتنا ہے. ہمارے پاس چونکہ بجٹ نہیں ہے ڈیفنس کا, ہم بات نہیں کر سکتے. جی سر, ایک جی 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 دیکھیں, ملکوں نے پرائیویٹائز کر کے انڈسٹریل سیکٹر کو ریوائیو کیا ہے, ڈائنامک بنایا ہے, اور تباہی کی طرف بھی گئے. روس پرائیویٹائز کر کے اپنا انڈسٹریل سیکٹر کو انہوں نے تقریباً تباہ کر دیا. ہم نے بھی یہ کیا. 1992 میں ایک سال میں 100 کے قریب انڈسٹریز پرائیویٹائز ہوئی, ایک سال میں. 3 کے علاوہ سب بند ہو گئی اور زمین پہ ہاؤسنگ کالونی بن گئی, یعنی ڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہوا. لیکن میں آج اس سبجیکٹ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ یہ خود ایک سبجیکٹ ہے پرائیویٹائزیشن کا. لیکن یہاں آپ دیکھیں 17 انڈسٹریز یہ پرائیویٹائز کرنے کو تیار ہے, انکلوڈنگ یہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہے. لیکن 2 ادارے ہیں, جیمز اینڈ جویلز کے, وہ پرائیویٹائز نہیں کرنا ہے, وہ رکھنا ہے اور ایک ایسی ڈویژن کو دینا جس کا تعلق نہیں ہے اس سے. تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کی دفاع کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. میرے پاس لسٹ ہے, آپ کو میں بھیج دوں گا پوری. کیا چیز؟ میرے پاس یہاں وہ ہے نہیں, نوٹیفیکیشن نہیں ہے میرے پاس. 2 یا 3 ہے, اور پولیٹیکل لوگ بھی 2-3 ہیں.
पीपल्स पार्टी का एक है जो बाद में शामिल हुआ और बाकी नून लीग के है। निजकारी को नहीं रोक रहे हैं। निजकारी को उन्होंने 17 इंडस्ट्रीज़ को तो रिकमेंड किया कि ये कर दें, लेकिन जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, जिस तरह अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह स्मेडा है, जिस तरह पॉपुलेशन काउंसिल है, ये इसको बंद करने में रेजिस्टेंस है। जी जी मेरा ख्याल है इसमें देखिए इस प्रोसेस में हम ये नहीं कह सकते कि कुछ फ़र्द है जो इसको रोक रहे हैं। इससे पहले एक कमेटी बनी है हफीज़ पाशा की, एक कमेटी बनी इशरत हुसैन की, इसी पर्पज़ के लिए अमल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पूरा एक फोर्स है जो गवर्नमेंट की अखराजात को कम नहीं करने दिया जाता। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि अलिफ जीम ते जो है ये रास्ते में खड़े हैं। इट्स नॉट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड वेरी हाई पावर्ड कमिटीज़। इशरत हुसैन की कमेटी, उससे पहले हफीज़ पाशा की। नियत नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है सबके। मैं आपको बताऊं, एक इदारे के सरबराह आए, उनको इन्होंने कहा कि जी 15 साल हो गए आपके इदारे को, आप बताएं आपने क्या हासिल किया। तो वो कहते हैं कि जी मैं मानता हूं कि कुछ भी हासिल नहीं किया, पोटेंशियल है, इसको बंद न करें। मतलब हर इदारे के सरबराह जो आए उन्होंने अपने काम को डिफेंड किया, चाहे वो कुछ है या नहीं। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हाँ मानते हैं कि कुछ नहीं किया लेकिन पोटेंशियल है, इसको बंद न करें। मैं नाम लेके भी वापस जा सकता हूँ और नाम नहीं लेके नहीं भी जा सकता। ठीक है, मैं इसको पर्सनलाइज नहीं करना चाहता। ये प्रोसेस मुल्क का मफाद यही है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो ये चला रहे हैं, कहते हैं कि हम चला रहे हैं हुकूमत के अखराजात कम करने में, इसमें काफ़ी रुकावटें पैदा हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जी ये पड़ोसी ममालिक जैसे हमारे चाइना, भारत, बांग्लादेश वगैरह, इसके तनाजुर में अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाना है तो कोई ऐसा आपने फैसला किया हो कि बिजली का जो यूनिट है, फी टेलर क्या होना चाहिए इंडस्ट्री को बचाने के लिए। और दूसरा जो हमारे इदारे हैं, हमारी रेगुलर क्रॉसिंग की बात आ रहे हैं, क्या उनको भी बचाया जा सकता है या उसको कराया जाएगा? इसके हमारे ये फिर एक अलग टॉपिक बन जाएगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर हमने इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता इंडस्ट्रियल रिवाइवल के बगैर और जॉब्स नहीं आ सकती इंडस्ट्रियल रिवाइवल के बगैर। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जीएसटी का रेट कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, और जो फैसिलिटीज़ है इस वक्त इंडस्ट्री के पास जगह नहीं है। इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जो है वो उसकी हालत इतनी खस्ता है कि इंडस्ट्रियल इस्टेट के बाहर तो लगी हुई है, अंदर नहीं लगी हुई है। तो ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एक ये अलग सब्जेक्ट है। जी
देखिए, कमेटी इसलिए बनाते हैं कि आप डिटेल में वर्कआउट करके ले आए, फिर आप फैसला करें, ठीक है ना। ये कमेटी, टेक्निकल कमेटी जो बनाई थी, तो पहली कमेटी जो बनी थी उसने काफ़ी प्रोग्रेस की, काम में काफ़ी किया। ये जो कमेटी बनाई है, ये इसमें बातें बहुत हैं, लंबी लंबी तकरीरें हैं और काम नहीं है। जी, मैंने इससे मेरी पूरी एक अपनी, मैंने 3 हफ्ते जो है लगा के वॉलंटरी टाइम विदाउट पेमेंट पूरी रिपोर्ट बना के दी है हर इदारे की बजट के साथ कि ये इनका बजट है, तभी तो मैंने 30 अरब का फिगर निकाला है। और हुकूमत कहती है कि इस पे चले आप हमें मज़ीद मदद करें इसकी, और मैं अगर समझता हूँ कि ये नीयत है इनकी कुछ काम करने की तो मैं जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि सिर्फ इसलिए मुझे बुला रहे हैं कि वो पीआर शायद ठीक हो जाएगा उनका, तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपनी नाम देने के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मुझे है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ तब मैं जाऊँगा। जी 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 जी। वज़ीर ख़जाना चेयरमैन है इस वक्त इस कमेटी के। पहले 2 जो कमेटी है उसके चेयरमैन थे डायरेक्टर जनरल प्लानिंग कमीशन जहांगीर खान जी, पहले वो थे। अब फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब है। नहीं, कमेटी में तो मैं नहीं जाऊंगा, इस कमेटी में तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहा मैं इस कमेटी में तो नहीं जा रहा। लेकिन अगर वैसे मुझसे कोई मदद मांगी जा रही है कि ये आप कैलकुलेशन करके बना के दे दें, मैं दे दूंगा, और मैं देता रहा हूँ। मैं थ्रू आउट मुस्तकिल इस किस्म की चीज़ें मैं करता रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट को भी इनपुट देता रहा हूँ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी दे रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ। वहाँ से एक फ़ोन आता, सर ये चीज़ हमें बना के दे दें, तो मैं बना देता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है, मुझे मज़ीद काम करने को कहेगा तो करूँगा, लेकिन मैंने पूरा एक प्रोग्राम 17 डिवीज़न 50 एंटिटीज़ बंद करना। देखिए, हर डिवीज़न के कुछ डिवीज़न बंद कर दें, वो डिपार्टमेंट बंद करना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो काम करता है कोई, तो वो भी दिया है कि ये डिवीज़न बंद हो जाएगा तो इसका ये डिपार्टमेंट कहाँ पार्क करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स बना के दी हुई है। जी जी जी। जो कमेटी का टीओआर होता है ना, उसी टीओआर पे काम करते हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो है हुकूमत के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करना, ये टीओआर है। आईपीपी का पेमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, वो इस कमेटी का। ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, चूँकि ये सब्जेक्ट नहीं है और इस पर मैं कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि आईपीपी के इशू पे इस वक्त आप कोई सेविंग नहीं कर सकते। सॉवरेन एग्रीमेंट्स है, आप इस एग्रीमेंट को एक तरफा चेंज नहीं कर सकते। अगर वो राज़ी हो जाते हैं और बात है, लेकिन आप नहीं कर सकते। जो फैसले गलत किए हैं आपने पिछले 25 साल 30 साल, मैं देखे ना, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं
जो एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं। हर कंपनी जो है IPPs में 100 के करीब कंपनीज हैं, सबके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही है, और कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। जो पुराने हैं उनका डिप्रिसिएशन हो चुका है मशीनरी का, जो नए हैं उनका नहीं हुआ है। तो एक एक कंपनी की कैलकुलेशन अलग करनी होगी। ये बैठ के एक कोई नंबर नहीं दे सकता कि सर हम ये करेंगे तो इतने बच जाएंगे। अगर वो कहता है तो गलत कहता है। जी नहीं, इस कमेटी के वज़ीर ख़जाना है, हाई पावर्ड कमेटी है। जी जी मैं जो ऑफिशियल नाम है तो दे देता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो लिस्ट है नहीं उसकी। जी DG प्लानिंग कमीशन है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, पावर डिवीज़न के सेक्रेटरी है। ये तो बिल्कुल सारे ऑफिशियल्स हैं। 2 या 3 मिनिस्टर्स हैं और 2 या 3 MNAs हैं। मैं फिर कहूँगा नाम मैं नहीं बताना चाहता, मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता। ये जो नोटिफिकेशन है बाय नेम नहीं है, ये बाय जो MNAs है वो बाय नेम है, मिनिस्टर भी बाय नेम नहीं है, वो उनके मिनिस्टर का वो लिखा हुआ है। जी मैं फिर कहूँगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इसको अपनी तरफ से पर्सनलाइज नहीं करना चाहता। मेरा किसी मिनिस्टर से झगड़ा नहीं है, किसी MNA से झगड़ा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से झगड़ा नहीं है। मेरा इशू ये है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, अखराजात हुकूमत ने अपने कम करने हैं, और उसमें अगर वजह पूरी हुकूमत है। देखें, वजह पूरी हुकूमत है। 2-4 फर्द हुकूमत का प्रोसेस न चला सकते हैं न रोक सकते हैं। अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी एक शख्स चाहता है ये हो जाए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सदर हो, और वो हो जाएगा। दो बड़ी कमेटीज़ बनी है, हफीज़ पाशा और इशरत हुसैन की, वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं की गई। इसका भी यही हशर मैं देख रहा हूँ। तो मैं पब्लिक में इसलिए आया हूँ, आपकी तरफ इसलिए मैंने रुझान किया है कि आप इसको don't let this process die. The process started by Hafiz Pasha and Ishrat Hussain. They were powerful people. मैं तो एक फ़र्द हूँ, वो बड़े ताकतवर लोग हैं। उनका प्रोसेस डाइड अवे, इसको डाई ना होने दें। मुल्क इस वक्त ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में है 10 साल 20 साल पहले के मुकाबले में। ये तवक्को थी कि IMF से 7 अरब मिल जाएंगे, बहुत कंफर्टेबल थे सब लोग, और पता चला कि पाकिस्तान एजेंडा पे ही नहीं है, और ये हर जगह भाग रहे हैं। एक मीटिंग एडजॉर्न करके चाइना गए प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा मकसद ये है कि ये प्रोसेस, डोंट लेट दिस प्रोसेस डाई लाइक बिफोर। और ये इसमें 1-2 शख्स नहीं होते हैं, हर शख्स के पीछे पूरी एक वेस्टेड इंटरेस्ट होती है। तो अगर अवाम की तरफ से, आपकी तरफ से ये शोर मचता है कि ये जो प्रोसेस है एक्सपेंडिचर रिडक्शन का, ये ईमानदारी से चलाएं। ये नहीं हो सकता कि जी ये मेरा पसंदीदा इदारा है, इसको बंद ना करो।